نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هزار بار بشویم دهن زیتر و غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. شاعر کہتا ہے کہ اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنا منہ عطر و غلاب سے دھلوں تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس نام مبارک لینا یہ بے ادبی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پر کوئی بات بولنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. شاعر کہتا ہے منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت. یہ احسان مت رکھو کہ آپ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، یہ احسان مانو کہ بادشاہ نے آپ کو اپنی خدمت میں رکھا ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ سننے کی، بولنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہم سب کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ نہایت ہی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور میں مختصر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک پیدائش سے لے کر نبوت تک یا بعثت تک، یہ 40 سال پر مشتمل ہے. اور دوسرا حصہ نبوت سے لے کر ہجرت تک جو کہ 13 سال پر مشتمل ہے. اور پھر ہجرت سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک جو کہ 10 سال پر مشتمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. عرب کا ایک بادشاہ، یمن کا ایک بادشاہ جس نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ من ذالک منہدم کرنے کا ارادہ کیا تھا، گرانے کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام کر دیا. جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، عربک اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، اس کے تقریباً
55 दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 8 या 9 या 12 रबीउल अव्वल को आमुल फील बमुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से रज़ात के बाद अपने घर तशरीफ़ लाई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की थी तो हज़रत आमिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा इस दुनिया से इंतकाल फरमा गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल की थी तो दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो भी इस दुनिया से इंतकाल फरमा गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा शाम का सफ़र किया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर दूसरी मर्तबा शाम के लिए रवाना हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी दयानतदारी को देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 28 साल की थी तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला बेटा इनायत किया जिनका नाम हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 32 साल की थी तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी तो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 34 साल की हुई तो हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने दस्ते अक़दस से खाने काबा के अंदर नस्ब किया। यह इस बात की अलामत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले भी लोग अदब और एहतराम करते थे, ताज़ीम करते थे, अपना रहनुमा, अपना कायद और सरदार मानते थे। और इसी साल हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश भी हुई। और फिर जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। फिर 3 नबवी तक यानी 3 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया जो करीबी रिश्तेदार थे, जो करीबी साथी थे, जो करीबी दोस्त थे, उनको दीन की दावत दी। फिर सन 390 के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म हुआ कि अब दीन की दावत, इस्लाम की दावत, तौहीद की दावत अलल ऐलान हर एक आदमी को दो। तो 390 में, सन 390 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान लोगों को दीन की, तौहीद की, इस्लाम की दावत दी। फिर सन 590 के अंदर जब मुसलमानों पर कुफ़ार के मजालिम बढ़े तो पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई। और फिर सन 790 के अंदर कुफ़ार के मजालिम जब हद से ज़्यादा बढ़ गए तो मुसलमानों को शैब अबी तालिब में 3 साल के लिए कैद कर दिया गया। फिर सन 1090 के अंदर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और
सन 1090 के अंदर ही हजरत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और सन 1090 के अंदर ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया और उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से। और सन 1090 के अंदर ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई, ईज़ा पहुँचाई, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ हुई। ताइफ से वापसी के बाद सन 1190 में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया और इसी साल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए, हज का मौका था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मदीना के कुछ लोगों से हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की, तौहीद की, इस्लाम की दावत दी। तो चूँकि उन्होंने पहले से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन रखा था, तो उन्होंने फ़ौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, तौहीद की दावत को कबूल किया और वो अपने शहर वापस मदीना तशरीफ़ लाए। उन्होंने वहाँ पे दीन की, तौहीद की दावत दी, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग मुसलमान हुए और सन 1290 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 12 लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, जिसको बैअत अक़बाए ऊला कहा जाता है। फिर जब वो लोग मदीना वापस आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दीन की दावत के लिए, दीन की, कुरान की तालीम देने के लिए साथ में भेजा। तो आइंदा साल यानी सन 1390 के अंदर तकरीबन 75 लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और मज़ीद इस्लाम के अहकामात सीखे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप मदीना तशरीफ़ लाई। फिर सन 1390 के अंदर जब मुसलमानों पर और ख़ास तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुफार के मजालिम थे हद से ज़्यादा बढ़ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 1390 के अंदर मदीना की जानिब हिजरत की और सन 1390 के अंदर ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर के अंदर 3 रोज़ क़याम फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 1390 के अंदर मदीना की जानिब हिजरत की। पहली ही साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद तामीर फरमाई और सन 1 हिजरी के अंदर ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाई किराम के दरमियान, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारगी, जिसको मुवाक़ात कहा जाता है, उसको कायम फरमाया और जो मदीना के यहूद थे जंग बंदी पर उनसे मुआहदा किया। सन 2 हिजरी के अंदर गज़वाए बदर का वाक़या पेश आया और फिर उसके बाद सन 3 हिजरी के अंदर गज़वाए उहद का वाक़या पेश आया और फिर उसके बाद गज़वाए खंदक सन 5 हिजरी में पेश आया। फिर उसके बाद सलह हुदैबिया सन 6 हिजरी के अंदर पेश आया और फिर उसके बाद गज़वाए खैबर का वाक़या जो है ये 7 हिजरी के अंदर पेश आया और इसी साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रतुल क़ज़ात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का इरादा किया था, कुफार मक्का ने रोक लिया, तो अगले साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी उम्रे की क़ज़ा की। सन 8 हिजरी के अंदर गज़वाए मौता का वाक़या पेश आया और सन 8 हिजरी के अंदर ही फ़तेह मक्का का वाक़या भी पेश आया और इसी साल यानी सन 8 हिजरी के अंदर गज़वाए हुनैन, गज़वाए ताइफ का वाक़या भी पेश आया और इसी साल हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए और इसी साल गज़वाए तबूक का वाक़या भी पेश आया और फिर सन 9 हिजरी के अंदर हज़रत
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں، ان کی نگرانی میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حج ادا فرمایا، اور سن 10 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور سن 11 ہجری کے اندر 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 11 جون 632 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔